What do you mean by noun? Noun is a name of noun is Yes. the name, place, name of person, place, uh, And thing. Fine. and yes, ma'am. Noun is a name of a place, person, and thing. If I'm saying Ram is going, then in this sentence, Ram is a noun as it is the name of a Yes, person. person. Fine. If I'm Yes, ma'am. saying I live in India, then again India is a place. तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा. Noun. Yes, ma'am. I read गीता every day. गीता भी क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ बुक. अगेन ये भी क्या होगा? Yes, नाउन होगा. सो दिस इज द noun. बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउ विल कंसीडर कि how many types of noun are there. So now we'll focus on noun and types. See, Sucheta, basically there are 5 types of noun. Yes, ma'am. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Fine. Yes, ma'am. So now we'll see what do we mean by proper noun. See, if I'm talking about a particular person, particular place, and particular thing, then all these are known as proper nouns. We can make this thing more clear by examples. See, there is a sentence: Garima lives in Delhi and reads Ramayan every day. एक सेंटेंस ये है और नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ अ गर्ल हु lives in a city reads a book every day. Fine. Yes, So, ma'am. can you please tell me what is the basic difference between these two sentences? Garima is the name of a particular girl. Exactly. Garima is the name of a particular girl. Again, Delhi is a particular place, and I'm talking about a specific book which is Ramayan. Ramayana. Fine. So, all these three are examples of Noun. proper noun. Fine. In Proper the noun. next sentence, I'm talking about a girl. A girl can be you, a girl can be me, a girl can be anyone. Yes, Fine. ma'am. I'm talking about a city. A city can be London, a city can be Delhi, a city can be Noida. I'm talking about a book. The book may be of physics, of chemistry, H.C. Verma, or something like that. Yes, ma'am. तो नेक्स्ट सेंटेंस में जिन 3 नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? Common noun. कॉमन नाउन की कैटेगरी में. वेरी गुड. सो ऑल दीज 3 बिलोंग टू
कॉमन नाउन, और तीनों ऊपर वाले किस में है? प्रॉपर नाउन में। और यही बेसिक डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कॉमन वर्ड्स जो हम सोसाइटी में यूज करते हैं स्पेसिफिक लोगों या स्पेसिफिक जगहों या स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, वो सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हम कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। Okay. Collective noun. See, collective noun represents collection of things or collection of persons. कलेक्टिव नाउन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं वर्ड यूज करूं टीम, एक क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 11। ओके, और उन 11 लोगों के लिए एक कॉमन नाम दे दिया जाता है क्या? टीम। अगर मैं जूरी की बात करूं तो ऑफ कोर्स हम रियलिटी शोज देखते हैं, तो जो 3 या 4 या 5 जजेस बैठते हैं उन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ड कमिटी की, फाइन, तो कमिटी में भी क्या होते हैं? कुछ सिलेक्टेड 7-8 लोग होते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लीट ऑफ शिप्स, तो कलेक्शन ऑफ शिप्स को क्या बोला जाता है? फ्लीट ऑफ शिप्स। सिमिलरली गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, और वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मटीरियल नाउन, anything that is present on Earth's surface, anything that is present on Earth's surface and that can be measured somehow, anything that is present on Earth's surface and that can be measured somehow comes under the category of material noun. किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जिसे किसी ना किसी ढंग से नापा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन बोलते हैं। फाइन। अगर हम वुड की बात करें, हम डायमंड की बात करें, गोल्ड, ऑयल, वाटर, इन सब चीजों को मेजर किया जा सकता है, तो ये किससे बिलोंग करती है? मटीरियल नाउन से बिलोंग करती है। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या इंक्लूड होगा? इमोशंस ऑफ अ पर्सन, और इमोशंस में क्या क्या आता है? लव, हेट, पिटी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या इंक्लूड होगा? स्टेजेस ऑफ लाइफ,
स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या होता है? ओल्ड, यंग, adult, teenager, all these are stages of life. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस। और क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं? ब्रेवरी, लॉयल्टी, ये सब क्या होती हैं? क्वालिटीज होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या क्या आएगा? इमोशंस ऑफ पर्सन्स, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस। सुचेता, जो हमने अभी नाउन को डिफाइन किया वो हमने डिफाइन किया उनके नेचर पे। एक और ढंग से जो नाउन्स हैं वो डिफाइन हो सकते हैं, और वो किस ढंग से हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। फाइन। देखो, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर नाउन्स को दो ढंग से डिवाइड किया जा सकता है या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। वन इज काउंटेबल नाउन्स एंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं सुचिता? हेलो, काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? याद नहीं है। याद नहीं। ओके, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एंड द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब देखो, काउंटेबल नाउन्स का हमें पता चल गया कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं हम उन्हें काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब काउंटेबल नाउन में एक एक्सेप्शन है स्टार्स, और अनकाउंटेबल नाउन में एक एक्सेप्शन है मनी। अब ये और लगता है कि स्टार्स को काउंटेबल नाउन में क्यों कंसीडर किया गया? सब स्टार्स को काउंट करना डिफिकल्ट है, लेकिन हम फिजिकली तो स्टार्स को देखकर ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 एंड 5 लाइक दैट। तो इसलिए स्टार्स को किस में कंसीडर किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स में कंसीडर किया जाता है। और एज फार एज अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसर्न्ड, मनी को अनकाउंटेबल नाउन में क्यों कंसीडर किया जाता है? सुचेता, वी कैन काउंट डॉलर्स, वी कैन काउंट रुपीज, वी कैन काउंट पैसास, बट वी कैन नॉट से कि गिव मी 2 मनी। कैन वी से? क्या हम कभी ये बोल सकते हैं हमें 2 मनी चाहिए? नहीं। हम क्या बोलते हैं? हमें 2 डॉलर्स चाहिए, हमें 10 रुपए चाहिए। सो वी कैन नॉट काउंट मनी, इसलिए इन्हें किस में कंसीडर किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर किया जाता है। ओके, अब हम फिर से आते हैं काउंटेबल नाउन्स पे। सिंगुलर और प्लूरल हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ थिंग्स पे। एग्जैक्टली। अगर कोई चीज एक होगी तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सिंगुलर में आएगी। अगर कोई चीज 2 या 2 से ज्यादा होंगी तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? प्लूरल में आएंगी। इज इट क्लियर? अब अगर मैं काउंट कर सकती हूँ देन इट्स वेरी नेचुरल मैं उनको सिंगुलर और प्लूरल में डिफाइन कर सकती हूँ। और अगर मैं उन्हें सिंगुलर और प्लूरल में डिफाइन कर सकती हूँ तो हम क्या कहेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अ बॉय इज गोइंग, many boys are going.
ओके, क्या अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल की बेसिस पे डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम बता ही नहीं सकते कि वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। इसलिए देयर इज अ रूल दैट वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब with uncountable nouns. फाइन। यस मैम। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज होता है? मच। और काउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज होता है? मैनी। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। स्टार्स को हम काउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं, मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं। क्योंकि हम किसी काउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन को क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा उसके साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और मच जो एडजेक्टिव है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, और मैनी एडजेक्टिव काउंटेबल नाउन्स। अब इसी बात को आगे बढ़ते हुए, सी आई एम राइटिंग सर्टेन नाउन्स on the screen, and all these are uncountable nouns and they all will take singular verb with them. Postage, knowledge, scenery, poetry, pottery, stationery, postage, knowledge, scenery, poetry, pottery, stationery, evidence, equipment, furniture, dust, filth, dirt, luggage, baggage, information, advice, ये सब के सब कैसे नाउन्स हैं? सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर, या फिर हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और एक बात जो हमें याद रखनी है, एस या ईएस कभी भी इनमें ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ऐड किया जा सकता? क्योंकि इनका प्लूरल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट्स इज नो वर्ड, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं हो। फाइन। यस मैम। So all these are uncountable nouns. We have to use singular verb with them, and no s or es can be added to them in order to make them plural. Okay ma'am. Okay. The scenery
of Kashmir is charming. सीनरी अनकाउंटेबल नाउन था तो इसने वर्ब कैसा लिया? सिंगुलर लिया. Yes, sir. The equipment is not working well. इक्विपमेंट ने भी क्या लिया अपने साथ? सिंगुलर वर्ब. Singular word. ठीक है. कुछ टाइम ऐसा होता है सुचेता कि हमें जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म की नीड होती है. ठीक है. ऐसा होता है कि हमें जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म की नीड होती है, और अगर प्लूरल फॉर्म की नीड होगी तो हमें वो बनानी पड़ेगी, पर हमने तो अभी पढ़ा है कि उनकी तो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो व्हाट वी जनरली डू, वी जनरली बाय एडिंग certain specific words before them, we can use plural verb with uncountable nouns. हमने क्या लिखा यहाँ पे कि by adding certain specific words before them we can use plural verb with uncountable nouns. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. All the pieces of information all the pieces of information given by her were reliable. ओके. यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, Yes, sir. लेकिन हमने वर्ब कौन सा यूज किया है? Plural word. क्यों यूज किया है हमने प्लूरल वर्ब? यहाँ पे हमने एक वर्ड ले लिया है pieces. एग्जैक्टली, वेरी गुड. क्योंकि हमने वर्ड क्या ले लिया? पीसेस ले लिया, है ना. और पीसेस का खुद का नेचर कैसा है? Plural. प्लूरल है, और इसलिए हमने कौन सा वर्ब यूज किया उसके साथ? वर यूज. वर्ब यूज किसके लिए हुआ है? पीसेस के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो हमें ये लग रहा है कि हमने इंफॉर्मेशन के लिए भी वर यूज Use किया. किया है. इस सेंस में वर्ड्स जोड़ के हम इनके साथ क्या कर सकते हैं? प्लूरल वर्ब को यूज कर सकते हैं. एक और हम देखते हैं. The articles of stationery that I bought yesterday were sold on the spot. यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? Stationery. स्टेशनरी. और हमने इससे पहले क्या ऐड कर दिया? Article. आर्टिकल्स. द आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी दैट आई बॉट यस्टरडे वर सोल्ड ऑन द स्पॉट. तो ये वर किसके लिए यूज हुआ है? आर्टिकल्स के लिए यूज हुआ है. और इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने देखा, इस ढंग से
हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? प्लूरल Plural वर्ब ones. यूज कर सकते हैं। क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का फंडा क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सी सुचिता, इफ अ नाउन is being followed by a preposition. If a noun is being followed by a preposition and if after the preposition the noun repeat itself, then in that case the noun should be used in singular form. Singular form. क्या बताया मैंने कि अगर कोई नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, हमने अगर कोई नाउन लिखा है और उसके बाद क्या आ रही है, कोई प्रिपोजिशन आ रही है, और उसके बाद जो नाउन पहले लिखा गया था वो सेम नाउन दोबारा आ रहा है, तो उन सेंटेंसेस में उन दोनों नाउन को या उस स्पेसिफिक नाउन को जो दो बार लिखा जा रहा है हम कैसी फॉर्म में यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में Singular यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is becoming weaker day by day. Town after town was destroyed by him. He inquired from door to door. Row upon row of flowers is looking beautiful. He is becoming weaker day by day. Day क्या है? nouns. नाउन है, बाय क्या है? प्रिपोजिशन Preposition. है, और उसके बाद फिर से क्या आ रहा है? डे आ रहा है, Noun. ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता था कि ही इज बिकमिंग वीकर डेज बाय Days. डेज। ये डे और डे दोनों किस में होनी चाहिए? हमेशा सिंगुलर Singular. फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हिम। टाउन क्या है? नाउन है, Noun. आफ्टर क्या है? प्रिपोजिशन है, और उसके बाद टाउन खुद को रिपीट कर रहा है, तो अगेन ये टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता था। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। डोर इज अ नाउन, टू इज अ प्रिपोजिशन, अगेन डोर इज अ नाउन, तो डोर्स टू डोर्स वॉज नॉट पॉसिबल। रो अपॉन रो, रो इज अ नाउन एंड अपॉन इज अ प्रिपोजिशन, तो यहाँ भी रोज अपॉन रोज नहीं हो सकता था। ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Okay. Now we will discuss about noun and case. Noun and case हमें ये बताएगा कि in how many ways we can use a noun in a sentence. At what positions we can use a noun in a sentence. And we have 4 types of cases for noun. One is subjective, or you can say nominative. Both have same meaning. The second one is objective or accusative. The third one is
dative, and the fourth one is possessive. Fine. If I'm saying Ram is going, तो राम की क्या पोजीशन है? सब्जेक्ट की पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब राम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ यूज हो रहा है? सब्जेक्ट की जगह हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन यूज अ नाउन as a subject of the sentence, and this thing only defines the subjective case of noun. Subjective case of noun क्या कहता है कि एक नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस होता आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया के कहाँ यूज हो रहा है? इंडिया कहाँ यूज हो रहा है सुचेता? सब्जेक्टिव की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह। हम एक नॉर्मल सेंटेंस किस फॉर्म में लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आई क्या है? सब्जेक्ट। लिव क्या है? वर्ब। और इंडिया क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इंडिया है क्या? नाउन। नाउन। तो ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस नाउन का क्या बताता है? कि हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं डेटिव केस। अगर मैं कहूं सुचेता रीड केयरफुली, और एक में लिखूं सुचेता is going, what is the basic difference in between these two sentences? फर्स्ट सेंटेंस में सुचेता को बोलो। फर्स्ट सेंटेंस में सुचेता को एड्रेस किया जा रहा है, एड्रेस किया बोला जा रहा है। और सेकंड सेंटेंस में सुचेता के बारे में बोला जा रहा है ना? that she is going. एग्जैक्टली। फर्स्ट सेंटेंस में सुचेता को एड्रेस किया जा रहा है और सेकंड सेंटेंस में सुचेता के बारे में कोई स्टेटमेंट दी जा रही है। फाइन। और जब हम एड्रेस करते हैं ना, एड्रेस हम सिर्फ किसे कर सकते हैं? एक पर्सन को, नाउन को। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि शी रीड केयरफुली? नहीं कहा जा सकता। तो हम नाउन्स को एड्रेस कर सकते हैं। सुचेता नाउन है और नाउन को एड्रेस किया जा सकता है। और नाउन को एड्रेस करना किसे डिफाइन करता है? डेटिव केस को डिफाइन करता है। हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हैं, और हम नाउन को क्या कर सकते हैं? एड्रेस कर सकते हैं। ये जो हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े, ये हमने एक बहुत जनरल नॉलेज के लिए या एक बेसिक नॉलेज रैप कर